Okay, guys. So question रहता derive the stiffness matrix for two noded truss element. Two-noded truss element. Okay, or derive the stiffness matrix for two-noded frame element having having 2 degree of freedom. This 2 degree of freedom is nothing but truss element. 2 degree of freedom per node. 2 degree of freedom per node. Okay, that is truss element. तो आपको इस तरह के दो क्वेश्चंस के आसपास ऐसे पूछेंगे. एक तो पूछेंगे डायरेक्टली ट्रस एलिमेंट और फ्रेम एलिमेंट हैविंग 2 degree of freedom each node. ओके, each node इस तरह का क्वेश्चन आएगा. सो 2 degree of freedom each node अगर ऐसे अभी बोला है तो वो किस तरह अभी रहेगा, यानी किस तरह अपन उसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले ट्रस नंबर मुझे लेना है. एज्यूमिंग ए ट्रस नंबर. सॉल्यूशन is one. Solution first. General of stiffness generalization. Sorry, generalization. Stiffness number. Stiffness matrix. Stiffness matrix. One minute. Generation of stiffness matrix. Axial deformation. That is equals to PL upon AE. So axial stiffness is equals to K axial is equals to stiffness is nothing but load upon unit deformation. Load upon unit deformation and deformation unit driver. Unit deformation driver. So it is P divided by PL upon AE. That PP get cancelled. AE by L. That is the stiffness of axial. Okay, stiffness of axial. The force matrix is next. इसके बाद axial stiffness है क्या हो गया अपना E by L हो गया. E by L. Axial stiffness is nothing but E by L guys. Okay, axial stiffness is nothing but E by L. उसके बाद लाइन लिखो. The force matrix are related to end displacement.
the force matrix are related to end displacement. Are related to end displacement. End displacement through the stiffness matrix. Through the stiffness matrix of a member. Through the stiffness matrix of a member. The coefficient in the stiffness matrix the coefficient in the stiffness matrix in the stiffness matrix stiffness matrix divided by imposing one displacement and unit displacement. Okay, one displacement at a time. One displacement at a time. One displacement कौन सा रहेगा आपका? Unit displacement रहेगा along the x, along the y, along the x and along the y. इस तरह के एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट आपका रहेगा. कोई भी इसका एक तो x रहेगा या फिर एक तो y रहेगा. ओके, इसलिए वन डिस्प्लेसमेंट एट अ टाइम बोला है. वन डिस्प्लेसमेंट एट अ टाइम. And restraining the remaining displacement and restraining the remaining displacement. Restraining the remaining displacement. Restraining the remaining displacement. The force required, next line guys, the force required next line, the force required to keep the member in that deformation state, in that deformed state, sorry, the force member in that deformed state, are this stiffness coefficient. But it is not a parallel. ये parallel नहीं है. ये और ये line different रह सकते. That is A dash and that is B dash. Okay. So displacement in B, A and B is both are the different. A के लिए y different है, x different है, B के लिए y different है, x different है. रह सकता है. Okay. या फिर एक भी रह सकता है, parallel भी रह सकता है. Okay. So मैंने सिर्फ बता दिया कि यहाँ पे चार डिस्प्लेसमेंट है. फोर डिस्प्लेसमेंट कौन से हैं? A dash पे जा रहा है, क्या हो रहा है?
कि आपका that x deformation, this y deformation, okay, that is x deformation, that is y deformation for locally. Again this is, and ये आपका अभी लोकली अगर आप लिखोगे तो ये आपका y डिफॉर्मेशन है और ये आपका x डिफॉर्मेशन, यहां से यहां तक x डिफॉर्मेशन, ये y डिफॉर्मेशन, यहां पे भी ये y डिफॉर्मेशन और ये x डिफॉर्मेशन लोकली, ऐसे आपके चार डिफॉर्मेशन हो रहे हैं लोकली बेस। ओके लोकली। अभी हम क्या, मुझे क्या होना, मुझे ग्लोबली होना, तो लोकली को ग्लोबली करने के लिए मुझे सबसे पहले लोकली क्या रहेगा वो पहले निकालना पड़ेगा, यानी लोकल एक्सिस है। अभी यहाँ पे लोकल एक्सिस है, ग्लोबल एक्सिस, बोथ आर इंपॉर्टेंट। ओके सो दैट्स व्हाई फर्स्ट सी दैट कि ये जो भी हम निकालने वाले हैं तो ये अपना पूरा का पूरा लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस दोनों मिला के है, ये लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस। सो मेरा जो भी रहेगा वो ग्लोबल एक्सिस पे क्या रहेगा, डेल एक्स क्या रहेगा, डेल वाई क्या रहेगा, वो मुझे निकालना पड़ेगा। लोकल एक्सिस के लिए मुझे फोर्सेस रहेंगे, कंप्रेशन या फिर टेंशन, और उसके हिसाब से मेरे ये लगे स्टिफनेस लगेंगे, कंप्रेशन स्टिफनेस या फिर टेंशन स्टिफनेस। ओके सो फर्स्टली हम एक डिफॉर्मेशन लगाएंगे, एक डिफॉर्मेशन लगा के देखेंगे। पॉजिटिव डिफॉर्मेशन इन x डायरेक्शन, पॉजिटिव डिफॉर्मेशन इन y डायरेक्शन, तो x एंड y डायरेक्शन वो ग्लोबल डायरेक्शन अपने क्या है, सो ग्लोबल इज नथिंग बट गाइस दिस इज माय ग्लोबल डायरेक्शंस, x ग्लोबल, y ग्लोबल, तो दोनों अलग अलग अपने ग्लोबल है, दैट इज x ग्लोबल डायरेक्शन एंड दैट इज y ग्लोबल डायरेक्शन। ओके सो x ग्लोबल एंड y ग्लोबल, तो उसके लिए अभी मुझे निकालना है। ओके सो फर्स्ट अप्लाई यूनिट डिफॉर्मेशन। पहला यूनिट डिफॉर्मेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नोट लिख के दिया, उसमें बोला है कि आपको एक डिस्प्लेसमेंट एक टाइम में लगाना है और यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगाना है। ओके अप्लाई यूनिट डिफॉर्मेशन, del x a is equals to 1, del x a को आप u a भी बोल सकते हैं और 1 is equals to 1 ये भी बोल सकते हैं। ओके s1 is equals to 1, ओके so displacement 1 is equals to 1 e। So अपन ने del x del y की इसमें अपन ने लिया है, del की इसमें लिया है, that's fine, we taken is del, okay, we taken del x is equals to 1। So guys what is your del x? अब आपको कहीं की बुक में क्या देखे रहेगा, u a is equals to 1, कहीं की बुक में आना है हमें कौन से इसमें u a देखे रहेगा, कहां पे देखे रहेगा u a, del x और del y को, del x को u बोला जाता है, del y को v बोला जाता है, तो u v आपको मेगरे में देखे रहेगा अगर आप मेगरे पढ़ते हो। एंड अगर आप एनपीटीईएल पढ़ते हो तो ये डेल आपको कुछ इस तरह देके रहेगा, दैट डेल, ओके दैट डेल एक्स, और एनपीटीईएल की कुछ ऑथर्स दैट डेल लेते हैं, तो ये दोनों डेल आप ले सकते हो, यू कैन टेक दिस डेल और दिस डेल, तो हमने ये पिकअप किया। ओके सो नेक्स्ट दिस नंबर, अगेन वी टेक दिस नंबर। सी गाइस यहाँ पे अभी अच्छे से देखो, यहाँ पे आपको अभी समझ में आएगा, ये आपने एक AB मेंबर ले लिया, AB मेंबर आपने ले लिया। सो अभी AB पे, A और B पे क्या है कि आपने हॉरिजॉन्टल जो है वो डिफॉर्मेशन पॉसिबल बोला है, हॉरिजॉन्टल वन डिफॉर्मेशन है पॉसिबल। सो मैं यहाँ पे अभी आपको विदाउट एनी कंफ्यूजन के लिए मैं आपको यहाँ पे क्या निकाल सकता कि मैं आपको यहाँ पे रोलर और यहाँ पे नीच निकाल सकता। तो रोलर निकलेगा तो यहाँ पे नीच रहेगा तो नो एनी डिफॉर्मेशन अलोंग द B, x deformation along the because of roller। okay so considering as here is roller and here is hinge, लेकिन निकालो मत, ज्यादा कचरा हो जाएगा इसलिए। okay so कोई जरूरत नहीं है। so del x deformation आपने पॉजिटिव पकड़ा, del x deformation। okay so ये जो आपका A पॉइंट था और आपका ये B पॉइंट था, तो दैट A पॉइंट A डैश पे आ गया, A पॉइंट A डैश पे आ गया, and that is del x a is equals to 1 हो गया, del x a is equals to 1 हो गया। so now यहां से क्या हो जाएगा,
यहां से अभी यहां से लेके यहां तक आप ज्वाइन कर दो, तो आपका ये अभी ए डैश बी, ये अभी आपका डिस्प्लेसमेंट यानी आपका मेंबर डिस्प्लेस हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स आपका मेंबर डिस्प्लेस हो गया है, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो अभी क्या करोगे आप, ग्लोबल डायरेक्शन में, जैसे ग्लोबल डायरेक्शन था एक्स जी, तो ग्लोबल डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेस हो गया। ग्लोबल डायरेक्शन में आपका अभी डिस्प्लेस हो जाने के बाद अभी क्या लगेगा कि मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका इसका पहले सबसे पहले ये निकालना है कि इस पे क्या स्टिफनेस लग रहा है ग्लोबल डायरेक्शन में, एक्स ये जा रहा है तो stiffness along the member if the member is moving along the x unit displacement एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो ये इसमें क्या स्टिफनेस लगेगा वो मुझे निकालना है, वो मुझे सबसे पहले निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, सी सो दैट, अब इसको स्टिफनेस को अपन F भी बोल सकते हैं एंड वी कैन से इट इज x S। So firstly we taken this S, stiffness S, okay, it's nothing but a K, okay, लेकिन आप बोलोगे कि सर K, ये तो आप E बार बता रहे हैं that E बार is equals to K, yes, so take it guys, stiffness S, okay, S is equals to stiffness, so yes as A आपको निकालना है यानी stiffness along the, आप लिख दे रहा बेटर रहेगा, stiffness along the member, स्टिफनेस along the member। अभी स्टिफनेस along the member आपका क्या निकलेगा ये सबसे पहले निकालना है, तो उसके पहले क्या निकालूंगा मैं कि मैंने ये थीटा ले लिया है अभी, सॉरी अल्फा, दैट इज माय अल्फा, यहां से यहां तक मेरा अल्फा है, और ये जो है इससे मैं एक परपेंडिकुलर निकाल ले रहा हूं, यहां से मेरा एक परपेंडिकुलर निकल गया, तो यहां से मेरा एक परपेंडिकुलर निकल गया, तो गाइस दैट ए डैश का ये ए डबल डैश मैं यहां पे लिख सकता हूं, ए डबल डैश मैं यहां पे लिख सकता हूं, तो ए डबल डैश ए डैश और ए डबल डैश, अभी मेरा स्टिफनेस क्या लगेगा, व्हाट इज माय स्टिफनेस along the that number is equals, मेरा जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट along this point, so what is displacement now, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू cos that del x t into cos alpha, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट है del x a into cos alpha, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट है ना गाइस, है कि नहीं ये बताओ, सबसे पहले क्या लिया अपन ने, del x is equals to 1 कंसीडर किया, उसके बाद मुझे मेंबर का स्टिफनेस चाहिए, मेंबर जो एलिमेंटरी एक्सिस पे है उसका स्टिफनेस चाहिए, उसके स्टिफनेस के लिए मैंने जस्ट एक सिंपल s यहां पे लिख दिया, मुझे निकालना स्टिफनेस इज इक्वल्स टू स्टिफनेस, व्हाट इज स्टिफनेस, स्टिफनेस इज इक्वल्स टू, स्टिफनेस अभी मुझे चाहिए, तो स्टिफनेस इज इक्वल्स टू आप बोलोगे डायरेक्टली s इज इक्वल्स टू e by l, e by l, but what e by l into आपको cos थीटा करना, cos थीटा into ये आपको करना पड़ेगा, तो e by l तो ये इधर लगेगा, इधर आपने x लगाया, लेकिन आपको along the इस पे चाहिए, along the कैसे चाहिए, इस पे चाहिए, तो that e by l जो भी e by l लगेगा, e by l that force into that displacement cos थीटा, that जो भी displacement है वो displacement cos थीटा, तो that is my force, आप बोलेंगे सर force on that take it as को आप एक force पकड़, that is force पकड़ लो, तो what is force is equals to e by l into del, यानी जैसे आप पकड़ते हैं कि s of s मैट्रिक्स
आप सॉल्व करते हैं। एस ऑफ एस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट? एस ऑफ एस मैट्रिक्स इज इक्वल टू एस ऑफ एस del E मैट्रिक्स इज इक्वल टू एस ऑफ एस इनवर्स इनटू f कर दे, इनटू f कर दे। तो f, अभी f मैट्रिक्स आपको निकालना है, तो del E मैट्रिक्स इनटू s ऑफ s करेंगे तो दैट इज f, और 100 डेज, और आपका ये रहेगा, यानी क्या बोलते हैं आपका फोर्स P, यानी फोर्स P, ये जो P है, P बाय del इज इक्वल टू, यानी P अगर यहां से मुझे निकालना है, P यानी फोर्स अगर मुझे यहां से निकालना है, क्या निकालना है मुझे? फोर्स निकालना है मुझे यहां से, और P निकालना है। फोर्स लिख सकता मैं और P लिख सकता, P निकालना है, तो मुझे क्या इंटू करना पड़ेगा फोर्स और P के लिए? मेरा K इंटू del करना पड़ेगा, K इंटू del, तो दैट इज K इंटू del, दैट फोर्स इज इक्वल टू, इसको P की जगह फोर्स लिख दो, फोर्स ऑफ AB, फोर्स ऑफ AB अगर मुझे निकालना है ड्यू टू x इज इक्वल टू 1, अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये स्ट्रिक्टनेस भी मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो आप इस तरह भी जा सकते हैं, और यहाँ से आप यहाँ पर डायरेक्ट जो मैंने अभी डिराइव करके दिया आपको, P बाय del इज इक्वल टू K इज इक्वल टू P बाय del। तो अगर P निकालना है मुझे, और इज इक्वल टू P यानी फोर्स ही हो गया, दैट इज लोड, लोड इज नथिंग बट अ फोर्स, फोर्स हो गया। तो फोर्स अगर आपको निकालना है तो क्या कर दूंगा मैं? K into del कर दूंगा, क्या कर दूंगा? K into del। तो यहाँ पे K into del, K क्या है आपका? एक्चुअल फोर्स के लिए क्या है? A E बाय L है, और del क्या है अभी? डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका अलोंग द x? del x into cos अल्फा, del x into cos अल्फा। तो गाइस फर्स्ट फोर्स along the member that F is equals to K del, K is equals to A E by L into del. What is del? What is del? Del x A cos alpha. Del x A cos alpha. Okay, that is del x A cos alpha. अब इसके ये फोर्स के दो कंपोनेंट निकले। अब आप बोलोगे सर आपने पहले स्टेटमेंट देखा, फोर्स क्लियर बता रहा हूं थोड़ी देर में। पहले आप फोर्स x और फोर्स y आप पहले ये पकड़ लो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 1 ही होता। बाद में आप अपन वहां से जो ऊपर मैंने लिखा है s ऑफ s इनटू फोर्स इज इक्वल्स टू del, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे s ऑफ s ही चाहिए, या फिर ke मैट्रिक्स ही चाहिए। दैट आप बोल दो तो ke मैट्रिक्स, तो ke मैट्रिक्स में आपको निकाल के देता है, ke मैट्रिक्स आपको डायरेक्टली निकल जाएगा। ओके, सो देखो गाइस, अभी यहाँ पे f इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू आपका ये हो गया, आपका क्या हो गया? k इनटू del हो गया, तो del इज इक्वल्स टू दैट, del इज इक्वल्स टू दैट। तो यहाँ पे मैंने अभी लिख दिया। अब इसके दो कंपोनेंट्स निकले। व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स? fy सर कैमरा से थोड़ा दिख रहा है, fy ab fx ab, fy ab fx ab, ओके, fy ab fx ab। तो अभी fy fx ab और fy ab अगर मेरे आए अभी इसके कंपोनेंट्स, तो इसके कंपोनेंट्स के लिए क्या लगेगा? ये अभी cos अल्फा है, तो ये cos अल्फा रहेगा ना अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा गाइस? f ab into cos अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक मेरा क्या रहेगा? ये मैं बीटा पकड़ लेता, तो ये क्या हो जाएगा? f ab into cos बीटा, fy ab is equals to f ab into cos beta, f ab into cos alpha, fx ab is equals to f ab into cos alpha। ओके, तो वही मैं यहां पे लिखता हूं, f x ab is equals to f ab into cos alpha
यानी क्या हो जाएगा, एफ ए बी क्या है अभी आपका, ए ई बाय एल इंटू डेल एक्स ए कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, और डेल एक्स ए इज इक्वल टू क्या है, वन है, सो ए ई बाय एल कॉस स्क्वायर अल्फा, इसे डायरेक्टली मैं लिख सकता, इसे डायरेक्टली मैं लिख सकता, लेकिन अभी मैं पहले वन नहीं लिखूंगा, पहले मैं डेल एक्स ए इंटू इंटू cos स्क्वायर अल्फा की लिखूंगा, fx a fx a, what is fi ab now, what is fi ab now, what is fi ab, fi ab is equal to a e by l del x a cos अल्फा into cos बीटा है ना, cos बीटा। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहे हैं दोनों फोर्स, सेम फोर्स आपको ऑपोजिट फोर्स इधर साइड लगेंगे, सेम साइड लगेगा, this F force F B A लगेगा, that is A B, that is B A, तो ये भी F X B A and F Y B A, सेम अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, ओके, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, तो ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो अभी ये अल्फा है, तो यहाँ पे Fx AB के लिए थीटा से ये अल्फा आपका आएगा, दैट इज cos अल्फा इज इक्वल टू, दैट इज cos अल्फा, दैट इज cos बीटा आएगा, ये यहाँ पे cos अल्फा नहीं आप बोल सकते अल्फा एंड बीटा, दैट इज अल्फा एंड दैट इज बीटा, ओके, सो आप क्या बोल सकते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, can I erase this part, ये पार्ट में इरेज करोगे, हाँ सर। और ये समझा क्या, ऐप समझा क्या, ऐप समझा या फिर से बताओ, एक बार बता दूं, एक बार बता देता, एक कोई दिक्कत नहीं, फिटनेस मुझे मेंबर्स पे पहले निकालना है, फिर मैं बाकी इसके निकालूंगा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये डिफॉर्म कब होगा, जब यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, force is equals to stiffness into displacement, stiffness is nothing but force upon unit deformation, तो force upon unit deformation, तो force upon deformation into deformation हो गया, यहाँ पे force upon unit deformation into deformation हो गया, so deformation के कैंसिल, यानी क्या है, ये इसका stiffness का यूनिट क्या है, force by unit deformation into deformation get cancel, बचा क्या, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, तो इसलिए मैंने क्या किया कि एफ ए बी पहले आपका लगने को ना, तो एफ ए बी कैसे लगेगा, डिफॉर्मेशन कौन सा है, ये फोर्स के परपेंडिकुलर, ये फोर्स के पैरेलल डिफॉर्मेशन कौन सा है आपका, ये फोर्स के पैरेलल डिफॉर्मेशन आपका ये है, क्योंकि आपका डेल एक्स ए ये है, मैंने आपने पकड़ा, तो डेल एक्स ए इज इक्वल टू डेल एक्स ए इनटू cos अल्फा, डेल एक्स ए इनटू cos अल्फा, ये इतना आपका डिफॉर्मेशन हो, ये अभी आपका इतना डिफॉर्मेशन हो गया, so that deformation into stiffness is nothing but force, deformation into stiffness is nothing but a force, ओके, आपको एक फोर्स मिल गया, फोर्स एफ ए बी, अब ये एफ ए बी के दो कंपोनेंट्स मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे ग्लोबल के चाहिए, एलिमेंटरी नहीं चाहिए, ओके, मुझे ग्लोबल के लिए चाहिए, सो सिंपल, ये cos अल्फा है, तो ये क्या रहेगा, cos बीटा, ये अल्फा, अपोजिट एंगल इज अल्फा अल्फा, ओके, तो इसका अपोजिट एंगल क्या रहेगा, बीटा, सो आई एम टेकिंग बीटा,
So that fx fab is equals to fxab and that is fyab. तो अभी fxab और fyab अभी ये कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर ये कैसे निकालेंगे? तो ये इस तरह निकालेंगे। तो ये f cos अल्फा करना पड़ेगा मुझे, fab cos अल्फा करना पड़ेगा, fab cos अल्फा इसका रिजोल्यूशन, और इसका रिजोल्यूशन fab cos बीटा करना पड़ेगा। अल्फा बीटा लिखा क्या मैंने? गलती से हो गया अल्फा बीटा, दैट इज cos बीटा। fab c बीटा यानी cos बीटा। ओके, cos बीटा। तो ये इसका रिजोल्यूशन हो गया cos बीटा, इसका। तो अभी fab क्या है मेरा? fab is equals to k it is ae by l into del x a into cos alpha into cos beta into cos alpha into cos beta. Next, fxab is equals to ae by l cos alpha del x a into cos square alpha. cos square alpha कैसे हो गया? क्योंकि ये पहले क्या था आपका a by l यानी f ab is equals to e by l del x a into cos alpha into cos alpha, ये यहां से that is f ab है। फिर उसके क्या किए? कंपोनेंट्स निकाले। तो that is fx component and that is fy component। अब सेम जो कंपोनेंट्स है ये ऊपर रहेंगे भाई, अपने को भी लिखना है। अभी समझा क्या? अभी भी डाउट है? हेलो, समझा सर? समझा सर, समझा। ठीक है। आपका तो ड्रेस हो गया है वहां पे कॉलेज में? ये नहीं पढ़ा है सर, लेकिन ओह नाइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में पढ़ाएंगे मैडम। That are the components। आप यहाँ पे component करके for select the member and components, component करके आप हेडिंग दे सकते। components करके आप हेडिंग दे सकते। for equilibrium of the member the force at end B are fxab is equals to minus fxba, opposite in nature। मैंने बोला अभी क्या रिएक्शन दे देंगे डायरेक्ट, that's why this fyab is equals to minus fy वन मिनट, इसको थोड़ा उल्टा लिखिए। b के लिए बोल रहा ना पहले, तो ba here is again ba माइनस होता है। सो स्टिफनेस कैसे निकालेंगे? the stiffness coefficient stiffness coefficients are the value of these forces when del x a is equals to 0, sorry del x a is equals to 1। अब del x a is equals to 1 कब स्टिफनेस आएगा आपका? जब आपका ये del x a, ये del x a, आपका ये del x a is equals to 1,
ये del x a is equals to 1 होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका स्टिफनेस हो जाएगा, that force is equals to converted to directly stiffness, unit deformation। ओके, यूनिट डिफॉर्मेशन जब होगा तब आपका वो क्या कहलाएगा, स्टिफनेस कहलाएगा। यानी ये जो डायरेक्टली आपका फोर्स AB लिखा है आपने, आप उसको क्या लिख सकते हैं, स्टिफनेस AB लिख सकते हैं डायरेक्टली, यानी स्टिफनेस AB लिख सकते हैं। जब ये आपका, जब ये मैंने डायरेक्टली S लिखा था, S कब होगा, जब ये इज इक्वल्स टू 1 होगा। ये सेंटेंस मैंने अभी लिखा, ये पहले लिख दिया था मैंने, del x ओके। तो del x इज इक्वल्स टू 1 मैंने अप्लाई किया, अप्लाई यूनिट डिफॉर्मेशन del x इज इक्वल्स टू 1, del x इज इक्वल्स टू 1। लेकिन पहले कब मैं ये कर रहा, उसको पहले मैं फोर्सेस दिखा रहा, फोर्सेस के कंपोनेंट्स दिखा रहा, कंपोनेंट्स दिखाने के बाद मैं क्या कर रहा कि del x इज इक्वल्स टू 1, del x इज इक्वल्स टू 1, यानी कैसी है, तो इस तरह। देन अभी इसको del x इज इक्वल्स टू 1, यानी ये अगर 1 हो गया तो बचा कौन, डिस्प्लेसमेंट 1 हो गया तो बचा कौन, f ab इज इक्वल्स टू k होगा ना, कैसी है, f ab इज इक्वल्स टू क्या बोला मैंने, k इनटू del बोला। अब del इज इक्वल्स टू 1, del इज इक्वल्स टू यूनिट डिफॉर्मेशन, del इज इक्वल्स टू अगर यूनिट डिफॉर्मेशन है तो बचा कौन गाइस, ओनली स्टिफनेस ना, ओनली स्टिफनेस बचा ना, समझे क्या। ये अब अगर अभी 1 हो गया तो बचा कौन यहाँ पे, Stiffness. एग्जैक्टली स्टिफनेस बचा। सो दैट्स व्हाई दैट इज, अभी हम बोल सकते हैं कि ये S1 बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, S1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ओके, यानी आप यहाँ पे नाम नेमिंग दे सकते हैं, दैट नेमिंग इज दैट के S11, S12, 1 view first column, 100 is S21, sorry, कॉलम पहला आएगा, कॉलम पहला आएगा, रो 2 1, ये आपका S थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और S फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। तो इस तरह आपके यहाँ पे स्टिफनेस बन जाएंगे जब आपका यूनिट डिफॉर्मेशन आप कर लो, जब आप पे यूनिट डिफॉर्मेशन लगा लोगे तब। तो यूनिट डिफॉर्मेशन मैंने लगा दिया तो मेरा S11 क्या हो गया, S11 is equals to, what is my S11, S11 is equals to, अभी यहाँ से क्या हो गया कि ये del x a आपका क्या निकल जाएगा, that is 1 हो जाएगा। तो बचा क्या, a by l into cos square theta, cos square alpha, del x a निकल गया ना आपका, del x a नहीं रहा, अभी क्या नहीं रहा, del x a is equals to 1 हो गया। तो बचा क्या, S11, यानी क्या हो गया आपका, S11 हो गया, ये क्या हो गया, S21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये अपन फर्स्ट कॉलम के लिए अभी कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम अपन आप पूरा डिराइव कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज AE by L, that is K into cos square alpha, AE by L into cos square alpha। Next 21 AE by L cos alpha cos beta, okay, cos alpha cos beta, next अब ये क्या है आपका, अभी FBA, यानी क्या हो जाएगा, S31 is equals to minus of S11, इसके हिसाब से यानी क्या हो जाएगा, माइनस AE by L cos square alpha, and S41 is equals to minus of S, ये यानी ये S21 minus AE by L cos alpha cos beta। यानी आपका पहला अगर आप लिखते हो तो ये आपका फर्स्ट स्टिफनेस आपका हो गया, फर्स्ट स्टिफनेस आपका हो गया, यानी आप इसको कॉलम में भी लिख सकते हैं, यानी वेक्टर में लिख सकते हैं, S11 S21 S31 S41, A by L is constant, बाहर A by L cos square alpha cos beta, cos square minus cos square alpha cos beta,
तो ये आपका फर्स्ट पेपर, दैट इज योर फर्स्ट पेपर। समझा क्या गाइस? गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट? सर अभी समझा सर ये कैसे है तो। ये कैसी है ये समझा के, यानी ये आपने अभी यूज किया होगा ना, आप हाँ यूज सर, कर ये रहे हो। हाँ ये यूज किया है। तो इसके बाद नेक्स्ट अप्लाई, अभी आपको चार इसी तरह तीन इसी तरह करने हैं। del by a is equals to 1, del x हो गया, नेक्स्ट del by सेम del by is equals to 1, तो उसका भी मैं अभी बना लेता। कैन आई erase this part? हो गया आपका बना के? हाँ सर। अभी मैं डायरेक्टली यानी फोर्स नहीं, अभी मैं डायरेक्टली स्टिफनेस केस हुआ था, यानी गया तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है अभी कि अननेसेसरी डायरेक्टली del x is equals to 1 करने के बाद क्या होता है, स्टिफनेस ही बन जाता है। इससे मैंने पहले स्टिफनेस ही लिखा था, लेकिन पहले आपको समझने को ना कि फोर्स कन्वर्ट होके क्या होता है, स्टिफनेस में आता है। कैसे स्टिफनेस में आता है? इज नथिंग बट k into del is equals to 1। तो इसी को डायरेक्टली लिख के हम विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस ये कर लेंगे, यानी स्टिफनेस के ही डायरेक्टली अपन निकाल देंगे। ओके, पहला आप जब भी डेरिवेशन करेंगे तब आप ये दिखाना पहले, आफ्टर दैट जो सेकंड स्टेप अपनी रहेगी del by is equals to 1, तो यहां पे डायरेक्टली मैं s लिख सकता हूं। हाउ कैन आई राइट x, अभी मैं आपको बता दूं। ओके, सेट del by is equals to 1, apply unit information del by is equals to 1, again decline number, that is sorry, that is a b. So this is del by a is equals to 1, अभी मैंने कंसीडर कर लिया डायरेक्टली del by is equals to 1। सो ये a डैश हो गया, ज्वाइन कर दिया b को। अभी क्या हुआ कि अभी ये a डैश पे चले गया, ग्लोबली चले गया, अभी ग्लोबली मैंने डिस्प्लेसमेंट लगाया। अब मेंबरली यहाँ पे भी क्या फोर्स लगेगा ये भी मुझे पता चाहिए। मेंबरली फोर्स सेम लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स इज लाइक दिस, दैट F AB, F AB, that's nothing but K into del, K into del, that del is equals to 1, I am taken, K into del is nothing but del is equals to 1, I am taken। ओके, सो 1 तो मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया, लेकिन अभी 1 क्या है, 1 के साथ क्या है वो देखो। 1 इस तरह का परपेंडिकुलर। अब गाइस व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा? क्या अल्फा रहेगा और क्या बीटा रहेगा? क्या ये बीटा लूप है या फिर अल्फा लूप? गाइस वर्टिकल के साथ एंगल बीटा, बीटा वर्टिकल के साथ एंगल क्या है, बीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा लेगी, वर्टिकल के साथ एंगल मेरा बीटा है। दिख रहा है क्या? बहुत छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा बनाओ के गाइड्स होगी। ठीक है सर। सो देखो अभी क्या है कि del x, अभी यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा ना, दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल
दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल क्या रहेगा मेरा डेल बाय ए इनटू cos बीटा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है डेल बाय ए इनटू cos बीटा। तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी फोर्स इज इक्वल टू k इनटू डेल k इनटू डेल। ये क्या वैल्यू रहेंगी यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी फोर्स a e बाय l दैट इज योर k, दैट इज योर k। अभी देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा a e बाय l दैट इज k इनटू व्हाट इज योर डेल डिस्प्लेसमेंट डेल बाय a इनटू cos बीटा इनटू cos बीटा दैट इज योर डेल। अब आप बोलोगे सर del by a is equals to 1 ना। yes del by a is equals to 1 that's why this cancel it's equals to 1, it's equals to 1 okay। so बचा क्या फिर आपका ae by l into cos beta into cos beta is equals to s is equals to f ab fab directly from this stiffness of coefficient are the value of this force when del x a is equals to 1 basically del by a is equals to 1 del by a is equals to 1 हो जाएगा। तो that f a b is equals to stiffness s okay। so stiffness यहाँ पे लिख लेना the member stiffness यहाँ से लिखा the member stiffness the member stiffness when del by a is equals to 1 is s is equals to a e by l cos beta a e by l cos। अब इसके दो कंपोनेंट्स अपन निकाल सकते how there are two components ये आपका बीटा रहेगा और ये आपका अल्फा रहेगा। s माने s लिखो या फिर f लिखो s लिखो या फिर f लिखो as you wish okay। so s मैंने लास्ट टाइम में f लिखा तो आप f भी लिख सकते हैं f a b is equals to s a b या फिर f ओके ये आप लिख सकते हैं। तो s यानी क्या है मेरा e बाय l cos बीटा इनटू cos बीटा जो cos बीटा है गाइस जो डायरेक्टली cos बीटा आ रहा ना देखो दैट इज s ये जो पार्ट है ये पार्ट e by l into cos beta is equals to s is equals to f ab। तो मैं क्या लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली ये लिख सकता ना मैं डायरेक्टली ये लिख सकता है यहां पे a e by l cos beta into cos beta that is my second यानी del by s y ओके sy और फिर fy ओके ये मैं क्या लिख सकता fy और ये मेरा क्या हो गया fx अगर sy दैट इज माय sy ab और fxy ab ये भी आप बोल सकते हैं ओके। एंड इसको ही आप क्या बोल सकते हैं आप ये बोल सकते हैं k22 s2 थोड़ी देर में बताता मैं 22 क्या है ओके। द नेक्स्ट हियर इज अगेन आप ये a by l जैसे कि वैसे क्या करेंगे into cos beta this force into cos alpha ओके cos alpha। तो ये क्या हो गया इसका रिजोल्यूशन मैंने इधर कर दिया इसका रिजोल्यूशन इधर कर दिया तो ये क्या हो गया मेरा दैट इज माय s x ab और fx ab लेकिन f s कब बन जाएगा जब यूनिट डिफॉर्मेशन होगा जब यूनिट डिफॉर्मेशन होगा तब तो यूनिट डिफॉर्मेशन है दैट्स व्हाई s x ab मैंने लिख लिया। तो दैट इज नथिंग बट
S21 क्योंकि सेकंड कॉलम में है मेरा ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, स्टिफनेस वेक्टर जो है मेरा दैट इज सेकंड कॉलम सेकंड रो। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे सीधा सीधा अपोजिट व्हाट फॉर इक्विलिब्रियम of the member the forces at end B are stiffness at end B are is equals to, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं लेकिन पहले हम यहां पे लिखते हैं then same sentence I repeat there okay so S components S KBM SX SXAB is equals to SXAB is equals to KAB into cos alpha so that is AE by L cos alpha cos beta into cos alpha and तो ये क्या हो गया आपका ये आप बोल सकते हैं इसको S21 that is S2 एक तो आप डायरेक्टली ये लिखना या फिर ये लिखना कोई भी एक लिखा तो भी चलेगा ओके यानी आप यहाँ पे डायरेक्टली S22 लिख सकते हैं और ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है वो डायरेक्टली आप एक्सप्लेनेशन इधर लिख सकते हैं दोनों लिखने की जरूरत नहीं है मुझे सिर्फ समझाना था आपको अच्छे से इसलिए मैं लिख रहा मैं डायरेक्टली अभी थर्ड से यहाँ पे लिखूंगा नहीं कुछ मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट ओके या फिर मैं ये ना लिखते हुए डायरेक्टली ये लिख के वेक्टर लिख सकता हूं दोनों मेथड सेम है कोई दिक्कत नहीं ये इज इक्वल टू अगेन सेम a e by l cos that is a e by l cos beta square या cos beta into cos square beta cos square now यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द मेंबर फोर्सेस की जगह फोर्सेस इज इक्वल टू स्टिफनेस गाइस व्हाई जब यूनिट डिफॉर्मेशन है तब सो S ओके ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अपन ने क्या यहाँ पे अपन ने कंसीडरेशन कर लिया यहाँ पे अपन ने उसको लिख दिया ओके नेक्स्ट क्या लिखूंगा मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि ये S that is second column third row second column fourth row one गलत तो नहीं लिख रहा हूँ पहले रो रहता हो सर हाँ गलत लिखा हुआ है 1 2 ये 2 2 ये बराबर है ये 3 2 ये 4 2 सेकंड रो सो दिस इज अब यहाँ पे क्या रहेगा तो इसका अपोजिट रहेगा अपोजिट क्या माइनस a by l cos alpha cos beta यहाँ पे क्या रहेगा माइनस a by l cos square beta so that is s 1 2 s 2 2 s 3 2 s 4 2 a by l common cos alpha cos beta cos square beta cos alpha cos beta cos square beta minus okay next
apply unit deformation. Del x b is equals to 1. B dash. That is A. So अभी लेट्स B dash पे चले गया, तो यहाँ पे अभी फोर्स क्या लगेगा आपका S. सेम गाइस, नो चेंज, सेम थिंग, अगेन कोई चेंजेस नहीं है. जैसे कि यहाँ पे अभी S क्या लगेगा आपका, इससे परपेंडिकुलर आपको निकालना पड़ेगा पहले. परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं आप अभी यहाँ पे. ओके, सो B से आपका क्या रहेगा, दैट इज अल्फा. ओके, ये अल्फा है, तो ये अभी आपका अल्फा है, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है. 1 मिनट, हॉरिजॉन्टल एंगल है. ये अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा. अभी इसके दो कंपोनेंट्स अभी मुझे चाहिए, फिर से दो कंपोनेंट्स करने के लिए. देयर आर द टू कंपोनेंट्स. तो अभी आप क्या बोलेंगे गाइस कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो दैट्स व्हाई वी टेकन दिस अल्फा एंड वी टेकन दिस बीटा. ओके, सो दैट s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, x डिस्प्लेसमेंट क्या है, del x. थोड़ा बहुत कंजेस्टेड हो रहा है, गाइस आई ड्रॉ अगेन. ये मिटा सकता हूं, हो गया ना आपका कचरा. यस सर. Yes, sir. हाँ सर. So same thing repeats, no change, same repeat होगा, कोई changes. Okay, तो ये अल्फा हो गया. अब ये 90 डिग्री हो गया. ये del x b is equals to 1, that b is equals to b dash. ये b डबल डैश पे चले गए. तो अभी ये क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अभी आपका, दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू cos थीटा होगा. cos थीटा, अभी आप बोलोगे सर ये कैसे क्या cos ले रहे आप, तो मैं यहाँ पे अल्फा लेता हूँ, दिस इज माय अल्फा. ओके, ये वर्टिकल से होगा इसलिए इसको मैं बीटा ले सकता हूँ, तो यहाँ से अल्फा लेता, तो ये अल्फा हो जाएगा, तो दैट इज del x b cos अल्फा, del x b cos अल्फा. अभी देखो दैट इज s. ओके, s. तो अभी इसका एक x कंपोनेंट चाहिए मुझे. आप बोलेंगे सर ये x कंपोनेंट थोड़ा अपन इधर निकाल लेते हैं. ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका del x है ना, x कंपोनेंट इधर निकाल लेते हैं और एक अपना y कंपोनेंट निकाल लेते हैं. देयर इज माय y कंपोनेंट. ओके, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मेरा ऐसे ही निकला है. We are taking there is x. जब इधर अपन फोर्स लगाएंगे तभी इधर साइड अपना डिस्प्लेसमेंट होगा. That's why we are taking like this.
अपवर्ड अपवर्ड, तो ये जो है ये एस डिस्प्लेसमेंट इधर लगेगा रिजोल्यूशन, और इस एक इसका इधर आएगा। ओके, सो अभी जब अपन रिजोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल से एंगल अगेन अगेन सेंडिंग एंगल का बात, तो ये आपका अल्फा दैट इज योर बीटा। ओके, दैट इज योर बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट ए ई बाय एल के इनटू डेल। डेल क्या है आपका, डेल एक्स बी इनटू cos अल्फा इनटू cos अल्फा, क्योंकि दिस पैरेलल टू दिस, दिस पैरेलल टू दिस, तो ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा रहेगा, नहीं कोई होगा। ओके, अगर अपन ये परपेंडिकुलर ले रहे हैं, दिस अल्फा इज इक्वल टू दिस अल्फा, तो पैरेलल अगर ले रहे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फिर ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल एक्स बी इज इक्वल टू cos अल्फा, डेल एक्स बी इज इक्वल टू cos अल्फा, तो डेल एक्स बी इनटू cos अल्फा, तो डेल एक्स बी इज इक्वल टू 1 नाउ, तो बचा क्या a बाय l इनटू cos अल्फा दैट इज स्टिफनेस। तो इसका x कंपोनेंट और इसका एक y कंपोनेंट, तो इसका x कंपोनेंट अगर अपन लेंगे तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, x कंपोनेंट इज इक्वल टू a e बाय l cos अल्फा, ये इसका स्टिफनेस है, इनटू cos अल्फा यानी cos स्क्वायर अल्फा। ओके, और इसका y कंपोनेंट, इसका एक y कंपोनेंट क्या, a e बाय l cos अल्फा, ये स्टिफनेस हो गया, यहाँ पे स्टिफनेस कब हुआ, जब आपका ये फोर्स यानी डिस्प्लेसमेंट एट b इज इक्वल टू 1 है, तभी ये स्टिफनेस हो गया, नहीं तो वो फोर्स है। ओके, फोर्स है, दैट फोर्स F B A इज इक्वल टू S कब हुआ, जब दिस इज इक्वल टू यूनिट हुआ तभी। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज इक्वल टू इनटू cos बीटा। ओके, अभी यही आपके अपोज करेंगे, यहाँ पे अपोजिट में अपोज करेंगे, यानी दिस इज S अपोजिट में, तो इसका ही नीचे और ये साइड, तो दैट इज माइनस a e बाय l cos अल्फा cos बीटा एंड माइनस a e बाय l cos स्क्वायर अल्फा। समझे क्या आप, ये समझेगा, अभी मैं डायरेक्ट गया, दैट इज k ओके इनटू डेल, डेल क्या है मेरा, डेल में डेल x a इज इक्वल टू 1 है, डेल x b इज इक्वल टू 1 है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 1। ओके, डायरेक्ट गया अभी, तो अभी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगेन सेम थिंग इज रिपीट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, द मेंबर स्टिफनेस when del x b is equals to 1, displacement at b is equals to 1, so s of b a is equals to a e by l into cos beta। So components आपने निकाल लिए, sx ba sy ba sx ba sy ba, ओके, ये आपने निकाल लिया, a e by l cos स्क्वायर अल्फा a e by l cos अल्फा cos बीटा। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाने के बाद क्या होगा, हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। इसी को ही अपन क्या बोल सकते हैं, अभी थर्ड वाला ले रहे हैं अपन, अभी क्या ले रहे हैं, थर्ड कॉलम ले रहे हैं, तो कॉलम थर्ड आएगा, ये फर्स्ट रो दैट इज S13, सेकंड रो S, ये सेकंड रो में आएगा, नहीं पहला नोड क्या है आपका, पहला नोड आपका A है, पहला नोड आपका A है, तो इसीलिए आप इसको ये भी बोल सकते हैं, यानी आप क्या बोल सकते हैं, S
ये ऊपर के रहेंगे गाइस, ये ऊपर के रहेंगे, यानी ये क्या रहेगा आपका 3 3 रहेगा, 3 3 s 3 3 s 4, क्योंकि ऊपर के है। पहला नोड आपका a है, सेकंड नोड आपका b, पहला नोड आपने वो लिया इसलिए पहले वाले वो रहेगा। तो ये बात तो देखते हैं पहले अपन। द नेक्स्ट इट इज इक्वल्स टू फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर equilibrium of the member, the stiffness at end A, अभी B के लिए अप्लाई किए थे इसलिए end A R del x AB is equals to minus of del x B del y AB minus of del y B. Okay, so next it is equals to as 1 3 as 2 3 is 2 3 as 3 3 as 4 3. So stiffness is equals to E by L is constant. E by L constant निकाल लिया, बाकी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। क्या लिख सकते हैं? cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा cos बीटा माइनस माइनस, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस में है, अपोजिट इन नेचर, दैट्स व्हाई cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा cos बीटा। नेक्स्ट अभी लास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं लास्ट। छोड़ दो क्या है आपका? हेलो, आज लग रहा है ये बीम का इजी था क्या? आवाज नहीं आ रहा मेरा, कोई रिप्लाई नहीं इसमें। बीम इजी था। नहीं तो ये भी इजी है, आप एक दो बार पढ़ लो बस। अप्लाई यूनिट डिफॉर्मेशन, del y v is equals to y, del y v is equals to y। मुझे ये इरेज करना पड़ेगा once again। v v dash यहाँ पे परपेंडिकुलर। अब जब भी हम वर्टिकल से एंगल लेंगे दैट इज cos बीटा, cos बीटा s यानी f b a, ओके इधर साइड ले लिया मैंने। सो अभी मेरा ये जो है इसके लिए मैंने क्या है del x b is equals to del y b is equals to 1 किया है, del y b is equals to 1 किया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका del by b into cos बीटा होगा, cos बीटा होगा क्या? 1 मिनट गाइस, मैंने बीटा एंगल गलत जगह से लिया, here is बीटा, ओके। तो अभी ये cos बीटा है, cos बीटा, ओके cos बीटा, ये del x del by b is equals to del by b is equals to cos बीटा हो गया।
एंड डेल बाय बी इज इक्वल टू cos बीटा हो गया। अभी ये डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी आपको देखना है, कौन से डिस्प्लेसमेंट के लिए देखना है, जे डिस्प्लेसमेंट के लिए देखना है, क्योंकि आपका ये लोडिंग लगाने से आपका डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो रहा है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज ओवर, दैट डिस्प्लेसमेंट इज ओवर। तो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग द मेंबर हो रहा है, अलोंग द मेंबर हो रहा है, तो मेंबर हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, डेल बाय बी इनटू डेल बाय बी cos बीटा, यानी k इनटू del by b cos beta. So what is your k? That k is equals to a e by l, a e by l, and del by b is equals to 1 into cos beta. ये क्यों 1 है? क्योंकि यूनिट डिफॉर्मेशन अपन ने एज्यूम किया, दैट्स व्हाई अपन इसको s लिख सकते हैं। ओके, अभी इसके दो कंपोनेंट्स, अगेन इसके दो कंपोनेंट्स, so there are two components. तो मैं ऐसे लिख लेता, ऊपर नहीं लिखते हुए नीचे लिख लेता मैं। So guys, here is beta, here is alpha. अभी ये बीटा है तो ये बीटा रखा गया परपेंडिकुलर, ये अल्फा है तो ये अल्फा रहेगा। ओके, क्योंकि ये बीटा है तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे अल्फा रहेगा। सो बीटा इज इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, दैट इज s cos अल्फा, s cos अल्फा, s इज इक्वल टू a by l into cos बीटा, और ये s ये ऊपर का कंपोनेंट मींस s cos beta. cos बीटा, s cos बीटा। ओके, अगर ये ऊपर का कंपोनेंट s cos बीटा, सो a e बाय cos बीटा, ये आपका s है इनटू cos बीटा, यानी क्या हो गया, a e बाय cos स्क्वायर बीटा। फिर से इसमें लिखना है, ये बोलना सर, लिखना है, एंड here is again a e by l cos beta into cos alpha। ओके, यहाँ पे अपोजिट नहीं हो सकता, रिएक्शन के, so what is minus a e by l cos alpha cos beta, a e by l, sorry, that is cos square beta, here is cos alpha cos beta cos alpha cos beta cos alpha, so there is both are the minus, both are the minus, remember यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ numbers plus 1 del x del by b is equals to, so s b a is equals to a e by l into cos, आप गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे गलत लिखा है गाइस, यहाँ पे क्या होना, यहाँ पे cos अल्फा होना, यहाँ पे cos बीटा लिखा है, यहाँ पे cos बीटा, प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे मैंने cos बीटा लिखा था पहले, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, cos अल्फा लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट्स, so there are the components, okay, one minute is आप लिख लो components, फिर हमारा क्लास में okay, so components is, what are the components, del x t, sorry, s x b a, s x b a is equals to minus s plus a e by l
cos beta into cos alpha sx sy ba cos beta. The next, for equilibrium, of the member, the stiffness at A del x AB is equal to minus AE by alpha cos beta cos alpha del by B AB is equal to minus AE by alpha cos square beta. Okay, the next last stiffness matrix. अब चारों वेक्टर को आप एक साथ लिख सकते हैं। एक साथ लिखने के बाद आपको के ए भी मिल जाता है S14 S24 S34 S44 ए बाय एल कॉमन अब इसमें से कॉमन ए बाय एल निकाल लिया तो अभी क्या बचेगा ये माइनस माइनस कर माइनस cos alpha cos beta minus cos square beta cos alpha cos beta cos square beta. अब मैं बीटा पहले लिखूं या चाहे बाद में लिखूं वो सही है। नहीं तो आप बोलोगे सर पहले बीटा बाद में अल्फा बिंदु में ही है, कोई भी मैं पहले और बाद में लिख सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको मिल जाएगा अरेंज the all equations, आप अरेंजमेंट कर लो all the वेक्टर्स, सभी वेक्टर्स की अगर आपने अरेंजमेंट लिख लिया तो आपको क्या मिलेगा, the stiffness matrix for AB member is AAB is equal to AE by L is constant, बाहर निकाल दिया मैंने। पहला वेक्टर क्या था अपना cos square alpha cos beta cos square alpha minus cos alpha cos beta। नेक्स्ट सेकंड वेक्टर क्या था cos alpha cos beta cos square beta minus cos alpha cos beta minus cos square beta, that is second vector. Third vector like cos square alpha cos beta. Fourth vector यानी थर्ड वेक्टर में cos square alpha cos beta. फोर्थ वेक्टर अभी आपके सामने है minus cos alpha cos beta minus cos square beta. तो next is cos alpha cos beta and cos square beta. This is your final matrix. यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट 4 वैल्यूज है इसका ये माइनस इधर, इसकी सेम इधर है, और ये जो फर्स्ट 4 वैल्यूज है वही यहाँ, ये एकदम सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, तो अभी कल से हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे आपका 13 मार्क्स का डेरिवेशन ओवर होता है। ओके गाइस, समझा क्या डेरिवेशन?